ضرورت پڑ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وكل انبياء المرسلين وبارك وسلم وسلم. امام حسن بیٹھی چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. مولا علی آ کوئی ایک جتا آتا ہے، ایک نہیں دن میں ہزاروں آتے ہیں. انوش نہیں انبیاء آتے مولا علی کے پاس، اس کے ارواح آتے، ولیاں آتے، غوثاں آتے، خطباں، قلندراں، حداں، سب کچھ جناتا انسان جتنے بھی اللہ تعالیٰ رجال الغیب بناتا سب آتے مولا علی کے پاس. ایک جتا آیا، آگو یا علی کچھ سوالات ہیں، میں سوال کرنا، میں بولو. مولا علی بولتے ہیں بچے پوچھو گا. ہمیں لوگ پریشان، ہمیں بہت بڑے عالم کا نہیں گئے. یہودیاں کو معلوم عالم کون کرو، یہودیاں کو معلوم عالم ہزاروں صحابہ ہی، کوئی صحابہ کرنے نہیں گئے، علی کے نہیں گئے سو. اور ہزاروں صحابہ کرنے سوال آتا تو انہوں کچھ نہیں بولتے تھے، معلوم عالم ہے کیچے علی کرو، چاہے حضرت ابو بکر ہو، چاہے حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو. جب ان کے کچھ بھی معلوم نہیں رہتا سیدھا علی کے پاس آتے، مولا کے پاس. اب عالم خود انہوں تسلیم کری علی کو، پورے صحابہ عالم تسلیم کرے. جب صحابہ تسلیم کر لے تو تمہارا کیا نہیں. اب انہوں بھی سوچے دماغ میں کیا ہمیں سوال آنا کو نہیں، اتنے بڑے بڑے سوالات دنیا میں پھرے، ہمیں سب سے علم والے کا نہیں آیا تو یہ علم والے بچے کا نہیں چھوڑا لے گا. جب پوچھ لے جاؤ کہتے. اب جا کے بیٹھ جاتے. اب بچے کھیلتے رہتی ہیں. مولا امام حسن کھیلتے کھیلتے سمجھ میں نہیں آیا کہتے، بولتے ہیں ایسے سوال بڑے بڑے نہیں کر سکے، ہزاروں سال سے پینڈنگ یہ سوال. ہمیں سوچے علی وسیع رسول علم کا دروازہ، ان کا علم ہے. جب انہوں سوال نہیں کرے تو تمہیں کون؟ میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی. اچھا سوال کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں کیا خود میں سوال کر لوں گا؟ سوال ان کے دل میں ہے سو، ان کے پاس ہے سو، ان کے پاس لسٹ ہے سو. امام حسن کیا بول رہے ہیں؟ سوال تمہارا سوال میں خود کر لوں گی، کیا تمہیں کرتی ہیں کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ہمیں سوال بولے نہیں، نہ علی کو بولے نہ ہمیں شروع کرے. انہوں بولے پہلا سوال یہ تھا تیرا سب سے وزندار چیز کائنات کے اندر، سب سے ہارڈسٹ، سب سے ہارڈ چیز کیا ہے؟ بولے پہاڑ. انہوں بولے سو تیرا پہلا سوال سب سے وزندار ہارڈسٹ چیز کیا ہے؟ انہیں لسٹ اٹھا کے دیکھتا ہے. برابر برابر بولے سو، برابر کیا بولتا ہے؟ پتھر، پہاڑ. انہوں سوال کر رہی انہیں. پھر سیکنڈ دونوں کو میں بولتا ہوں. پھر اس کے بعد کون سی کرا؟ اس کے بعد اس سے طاقتور کون سی؟ اس سے طاقتور کون سی؟ انہوں بولے لوہا. خود سوال کر لے رہی امام حسن. دوسرا سوال تیرا کیا ہے؟ پہاڑ سے پتھر سے طاقتور چیز کون سی؟ لوہا. پھر تیسرا سوال کیا ہے؟ اس سے زیادہ طاقتور چیز لوہے سے کون سی ہے؟ بولے آگ. پھر دیکھتا چیک کرتا ہو برابر تیسرا سوال. پھر پوچھتا، پھر انہوں خود پوچھتے ہیں آگ سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ انہیں بولتے کہتے ہیں پانی، جو آگ کو بھی بجھا ڈالتے. پانی سے طاقتور چیز کیا ہے؟ پھر بولتے کہتے ہیں بادل. کیا؟ بادل جو پانی کو برساتا. بادل سے سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ وہ فرشتہ جو بادلوں کو چلاتا ہے، جو بادلوں کو چلاتا. وہ فرشتے سے میکائیل علیہ السلام بادلوں کو اشارہ، وہ فرشتہ میکائیل. میکائیل سے بھی طاقتور چیز کیا ہے؟ بولتے ہیں جبرائیل، جو جبرائیل بھی جو میکائیل کو حکم دے. پورے سوالات ہو جاتے، پورے سوال ہو جاتے. امام حسن علیہ السلام پھر بولتے نہیں نہیں ابھی کھول. وہ کیا بولتے ہیں؟ ابھی کھول. یہاں انسان کیا ہو گیا کیا؟ نہیں نہیں پیچھے کٹ کے ابھی ہے کر، ابھی ذرا تر وہ فولڈ کر لگاتے سو، ابھی پیچھے ہے گھر کو کھول جاتا. اور ایک سوال ہوتا ہے جبرائیل سے بھی طاقتور کون؟ جبرائیل سے طاقتور کون؟ ہاں ہے نا، یہ چھوٹا لکھا نا. جبرائیل سے بھی طاقتور بولتے ہیں اسرائیل. کیا؟ اسرائیل کی کر کو بولے تو وہ اسرائیل جو جبرائیل کو بھی جب قیامت آتے جبرائیل کو بھی موت دے دیتا. پھر کھول، پھر بولتے ہیں اور ایک سوال چھوٹ گیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل سے بھی طاقتور کون کہتے ہیں؟ موت. اسرائیل سے بھی طاقتور کون؟ موت کہتے ہیں. موت اس میں طاقتور موت کہتے ہیں. ہو گیا کیا سوال آگا؟ تو پھر کھول نہیں جاتا. بولتے ہیں ہو گیا. اتنا اس نے سوالوں پورے سوالوں کا جواب دیا. سوالوں بھی میچ کریا، جواب بھی میچ دیا. سوالوں بھی میچ کریا، جواب بھی میچ دیا.
पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहा से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर बादल, बादल से ताकतवर फरिश्ता, फरिश्ता कौन सा? मिकाइल, मिकाइल से ताकतवर जो मिकाइल को हुक्म देता, जिब्राइल, जिब्राइल से ताकतवर इजराइल, इजराइल से ताकतवर मौत। तेरे हो गए 9 सवाल ना? हो गए, हो गए। मिल गया तुझे सवाल? तू वो छोटे सवाल आएंगे वास्ते मेरे बाप करने जाता क्या? सुभान अल्लाह। मेरे बाप करने जाता क्या? मेरे बाप को वो सब काम आनी क्या? मेरे बाप को सब काम आनी क्या? सभी छोटे मोटे सवाल करने के वास्ते खेलते 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 तेरे सवाल भी मैं करता हूँ, जवाब भी मैं देता हूँ। सुन और एक मैं सवाल कर दूं, तू बोल, बता मौत से ताकतवर कौन था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत से ताकतवर कौन? कौन का था? सोचते 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 इधर से उधर से उधर से मौत से ताकतवर क्या था? तो पूरा मौत ही था, पूरी मौत ही था। कैसा पूछते हो? इमाम हसन बोलते हैं हमारे भी तौरत में लिखा है, इंजिल पढ़ी, ज़ुबूर पढ़ी, यहाँ तक कुरान में भी हमें पढ़ को ही, हमें पूरा एक्सपीरियंस कर को ही। अल्लाह ताला एक चीख जो होती है, एक निदा देता है, पूरे मर जाते, फिर एक निदा देता है, पूरे जिंदे हो जाते। मौत को भी मौत आ जाते कहते, मौत को भी मौत आ जाते कहते, पूरे मर जाते कहते। फिर पुकार होती है कहते, फिर पुकार होते के साथ क्या होता है? निदा आते के साथ फिर जिंदा हो जाता है, फिर जिंदा हो जाते कहते हैं। वो इमाम हसन कुछ नहीं कहता है, यस लिखो ऐसा डूम्सडे में तुम्हारा हो, कयामत के दिन यश होता है। मैं सवाल करता हूँ, तू पूछ कहेगा। मैं अब इमाम हसन मैं सवाल करता हूँ, तुम्हें राहिबान को, तुम्हें देखो कौन सा करके बोले कहते, पूछो कहेगा। बोलते कहते हैं जो मौत को भी मौत दे, जो मौत को भी मौत का जो आवाज जो आई वो पूरी की पूरी कायनात मर जाती, कौन भी नहीं रहता, कौन भी नहीं रहता। वो आवाज कौन देता पूछेगा, वो आवाज सब मर गए बाद आवाज कौन देता तो सोचता करता इधर उधर, शायद अल्लाह देता नहीं। बोलता अल्लाह हर चीज से पाक, हर चीज से पाक, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। मौत को भी मौत देने वाला मेरा बाप अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पुकार पूरे मर जाओगे तो बोल दो, फिर जिंदा मर जाओगे तो मर गए। इजराइल भी मर गए, जिब्राइल भी मर गए, फरिश्ते भी मर गए, मलाइका भी मर गए, टोटल मर गए। अब कौन भी काम करने वाला नहीं है, पूरे के पूरे पूरे मर गए। अब वो मर गए टेम्पो इन्हें बोलते हैं ये मेरा बाप अली का है। बादस खुदा बादस नबी सबसे बड़ा मौला अली। नारे मौत को भी मौत देने वाला। समझ में नहीं आया? मेरे नाना रसूल फरमाते कि मेरा बाप अली जिससे ये सारी दुनिया किससे बनी पता उन्हें बोलता कुन से बनी गया। किससे? कुन से। कुन क्या? हो जा। कुन हो जा। कौन बोला सो? हाँ देख लो, अल्लाह ना शेख ना सूरत ना फेफड़े, ये सब चीज़ां से हर चीज़ अल्लाह समद, हर चीज से पाक। हर बोलते नहीं जहां तभी आवाज बोलने के वास्ते तुम ना हवा होना, क्या होना? हवा होना, मादियत होना, क्या होना? मादियत है तो सुनना आवाज आती सुन, और हया तो सुनता सुनी। खुदा की कसम जो कुन की पुकार थी, वो कौन सी पुकार? वो जो कुन अल्लाह ताला कुरान में बोलता वो कुन हो जा, वो मेरा बाप इधर बैठा ना अली बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। और सुन जो सुनिया कुन सुनिया तो फिर भी मेरा बाप अली सुन को फिर वो छोड़गा। नारे हैदरे हैदरे हैदर 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 या अली। ये हसन का इल्म, उसके वास्ते वो सूरह रहमान में है, क्या है? सब कुछ फना हो जाता, तेरा चेहरा बाकी है। किसका चेहरा? तेरा चेहरा बाकी है। सब कुछ फना, सब कुछ फना हो जाता, सब कुछ, सिर्फ तेरा चेहरा बाकी रहता। सुन मेरे बाप की शान कुरान के अंदर, जिसे अल्लाह ताला वजहुल्लाह कहता है, वो अल्लाह सूरत से भी पाक है। वो अली की सूरत मेरे बाप की कहता है। वो सूरत से कुन बोलिया सो, वो सूरत से मौत को मौत बोलिया सो, वो सूरत से
मकुन को बोल को फिर इधर से भी उन्हें बोला सो ये मेरा अली है, तू इतने बड़े अली को इतने छोटे चीज़ा ले जा दिखा रहा क्या कर, इतने बड़े अली को इतने छोटे चीज़ा ले जा दिखा रहा है। उसे बोलते सो ये सब किताबा में है, किसमें? ये सब किताबा में है, ये क्या अभी बाहर के बात नहीं है। चुपके जरा बोले कि नहीं बोल जरा फिर सब ये किताबा के इल्हाम है, कुछ भी इल्हाम की नाम का किस्से नहीं, ये सब इमाम हसन के तसनीफा में है। ये खुद इनके बयाना में बोल को इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अब तुम्हें इमाम हसन की दुश्मनी करती है, तुम्हें सियासतदान को 6 किताबें लाते हैं, एक इमाम हसन की तुम्हें हदीस नहीं लाते, ये तुम्हारा जलन। एक हुसैन की बराबर हदीस नहीं आती, अइम्मा अहले बैत से तुम्हारे हदीस आने, तुम्हें खदीजतुल कुबरा से हदीस आने, तुम्हें इमामा से अगर लेको रहते हो, रसूल के खानदान से अगर लेको रहते हो, तुम ना सही में अली समझ में आता, कुछ 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 वो भी कुछ तुम्हें किस करने से ले लेंगे। 50 साल के बाद मुसलमान, 60 साल के बाद मुसलमान, तुल्खा कुरान लिखा करके बैठता, उन्हें बहुत बड़ा पीर साहब नाचता, कुरान ये जो है वो देखो फतह मक्का के बाद जो हुए क्या हुए, तुल्खे सारे सहाबा अगर अबू सुफियान माविया नमाज में पहले खड़ जाते तो पहली सफ में आको ऐसा ढकलते कोने में निकल तुल्खे दलिंदर हमारे नमाजा के अंदर आ खड़ा था, हमारी नमाज ढकलते ढकलते मस्जिद नबी के पर बाहर निकालते, जाको बोलता अबू सुफियान सरकार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। सरकार बोलते है तू जो मारे इनके खानदाना को, जो उनका लूटा तू है सो असल में तुझे मौत की सजा देना था, तुझे मैं थूक को छोड़ी उसको। अब उनके दिल में वो हदा, उनके खानदान वालों को बदर में मारा, ओहद में मारा, खंदक में मारा, हर जगह को इनेस था, अबू सुफियान था। तू मारा, उनके दिल में हत्या सोचते रहे, तुझे इज्जत नहीं मिलती, क्या करना हो तो मेरे बच्चे को क्या लिखो, मुंशी बना को रखो, क्या क्या कर तो हाँ भी प्लान कर क्या कर तो बैतुल माल का खाने के वास्ते क्या करे, यहाँ भी प्लान करे मालूम, बैतुल माल का खाने के वास्ते क्या करता है, प्लान डालो का मुंशी बना दे। अब मुंशी को मेरे कातिब है सो, हदीस में कातिब है सो, क्या है सो, कातिब लिखने वाला, कातिब लिखने वाला, कातिब वही नहीं है, क्या कातिब वही नहीं है, इन्हें कातिब लहीन है, क्या इन्हें कातिब लही। जरा कभी बैठी वो मकाम को बराबर खोल को हम क्या पढ़ो हदीस सीधा, कौन सी भी हदीस से साबित नहीं, इन्हें कातिब वही करो, इन्हें कातिब मुंशी, कातिब इन्हें। अब उसे ले जाओ, वो मुंशी को ले जाओ, कुरान को लिखने वाला बस बोल रही ना तुम्हें सभी, कितने बड़े जालिम के बच्चे हैं ना तुम लोगों के अंदर। देखो उसके ऊपर क्या करते सो मामू जान, किसका मामू जान है, किसका मामू जान, मामू जान को नहीं बोलना कि वो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हों ईमान लाने से पहले कौन, इन्हों सब ईमान लाने से पहले अबू सुफियान, हिंदा, माविया सब ईमान लाने से पहले हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु कई साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिजरत करती, ये मदीने की हिजरत से पहले हबशा की हिजरत होती, कौन सी हबशा की तरफ भेजती। वो टाइम को क्या होता, इनका इंतकाल हो रहा था, इनके शौहर का इंतकाल हो रहा था, इनका हबीबा का। बाद में इस्लाम कबूल करके फिर वापस आए, इस टाइम को क्या करते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निके में कपकीश ले लेते सो, तब से क्या करता अबू सुफियान रिश्ता तोड़ लेता, माविया रिश्ता तोड़ लेता। अब भी ये तुल्के अब आगे नहीं, अब आती घर का नहीं, मुसलमान बने बंदे मीटिंग को आती, मेरे बेटे को माविया को तुम्हें कातिब वही रखो। वो आने से पहले एक वाकया है या दूसरा वाकया समझे, घर को घुस को आता, किसके घर को, बेटी के घर को। अब बेटी याद आती उसकी को, तो रसूल का नहीं, इन्हें बन का नहीं, उम्मती बन का ना। अब लोग में दिखाना मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बत वाला जमाई, मेरे रसूल मई ससुरा, दुनिया में हवा जमाना ना, इन्हें अंदर घुसा। अब कैसा जमाती, हमारे आदमी से भी काम मिले, घुस को पढ़ने नहीं आता, उर्दू पढ़ने नहीं आता, आयत कुछ भी नहीं आता, क्या को तो जब पूरा दीन चलाए सर का, पूरा दीन, पूरा इस्लाम, पूरा ईमान चलाए सर के बात, क्या पेट काटे तो अलिफ भी नहीं है, पेट काटे तो ये भी नहीं है, ना दुनिया का इल्म है ना दीन का इल्म है, क्या भी नहीं है, इन्हों बन के इन्हों दीन बचाने चले गए। यहाँ हमें पूरा दूसरी स्टोरी सुना, ये भी हदीसा सुना रही सो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जाता है,
जाता जाता अंदर दरवाजे करने आते एक साथ उम्मे हबीबा क्या करती, जल्दी जल्दी लपटती। क्या लपटती? बिस्तर लपटना शुरू कर देती। अंदर घुस जाता बाबा अबू सुफियान उम्मे हबीबा के घर में, रसूलुल्लाह के घर में घुस जाता। तो बेटी क्या कर, अब बेटी हो गई सो, अब बेटी हो गई सो, वो टेम्पो मुसलमान हो गया करके बोल को छोड़ ही डाले आदमी, दुश्मन होगा। अब बेटी करके बोले तो बाप की इज्जत करना। बाप आया तो बिछाने के ऊपर बिछाना डालती है, इसके ऊपर तुम्हें बिछाना डाल दे, बैठने करते तो उठा डाल रही ना। तो उम्मे हबीबा के ऊपर हमारा पूरा ईमान कुर्बान, हजरत उम्मे हबीबा के ऊपर सहाबिया रसूल उम्मुल मोमिनीन क्या बोलती मालूम? बाप है तो मगर ये नूर वाला है, नूर वाला बैठने की जगह, नूर वाला इस्तेमाल करने की जगह, नूर वाला नजर डालने की जगह, नार वाला नहीं देख सकता। नार वो तो जहन्नम वाला। जब बेटी का फैसला बाप के बारे में ऐसा है को बोले तो मौलवी इधर तो सेम ऐसे जिन्ना कहां से कि वो अलाउद्दीन के जिन्ना घस घस को वापस नहीं ना, ऐसे जिन्ना पूरे जिन्ना बैठ जाओ इन्हों बोलते सो क्या करके बोला तो भी नहीं है। अब फिर भी ये भी बोलती कौन से भी एक सहाबी को मान ले, सब मान लेगा मानो बाप उम्मुल मोमिनीन को मानो। नार वाला बोले अगर उसके बाप को सहाबी मानते या बराबरी में या कुछ भी रिश्तेदारी में मानते तो बाप की इज्जत करो, क्या करना था? बिठाना था, मगर खड़ा को भेजा, चल होता भी नहीं। हदीस सुनाए करके बोले तो अंदर भी खड़ा नहीं, चल यहाँ से भी यहाँ रसूलुल्लाह खड़े नहीं, चलो वहां निकालिए दादा। कब? मुसलमान बनने के बाद। मुसलमान बनने के बाद उनकी बेटी को ज्यादा मालूम कि आज के ये आजकल ये सो कॉल्ड पापा पापा बोले ना उनको मालूम बोलो ये है सहाबा ढकले, ये ढकले, वो ढकले, ये सब चीजें, ये सब ये ईमान बोलते ठीक है। बोला तो रसूल की दुश्मनी करने वाला, अहले बैत की कोई दुश्मनी करना दुश्मन, ये सब चीजें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में ही घर में एकदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नूरानी शक्ल में फरिश्ता उतरता, फरिश्ता उतरने के बाद एक थैला देते, एक थैली देते, थैली देने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते, ले लगा को बैठते, बैठने के बाद बोलते हैं आओ पूरे मेरे पास ऐ अली आओ, ऐ हसन, ऐ हुसैन, पूरे आओ घर वाले को बोल को पूरे घराने वाले को बुला दिए। उसमें अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ज़ैनब, कुलसुम पूरे आते, फिजा, सलमान फारसी पूरे आपको बैठते। बोलती जिब्राइल आए, अभी मुझे थैली दिया और हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि हम जब दुनिया से रुखसत होती हैं तो इसमें जन्नत वाला काफूर है, जन्नत की चीज़ें हैं जिससे हमारी तदफीन और हमारा गुस्ल वगैरह इससे होता, इससे होता, इससे होता, आम दुनिया की चीज़ों से नहीं होता। क्योंकि तो हमें नूर वाले दुनिया के कोई सी भी चीज़ें पाक नहीं रहते, ये नूर वाले चीज़ें, उसके यहाँ से ये काफूर है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, जैसा मैयत को क्या क्या रखती है वो सब चीज़ें। जन्नत क्या है? क्या है सो? हम यहाँ बेर के पत्ते, अनार के पत्ते, काफूर, अभी अरगज्जा, ये सभी डालते नहीं। वैसा रसूल को यहाँ दुनिया का नहीं डाले, दुनिया का नहीं डाले, जन्नत से भेजा। ठीक है, तो यहाँ का सभी क्या रहता? गोबरी से बनता। अल्लाह का रसूल और अहले बैत पाक, उसके यहाँ से जन्नत से भेजा, जन्नत से भेजा है। भेजा इस को क्या करे? पहली थैली उठाए, जहरा को बुलाए, ऐ जहरा ये मेरी फर्स्ट रसूल रख ले, अपनी थैली देखा दिखाए, उसके ऊपर मोहम्मद का नाम रखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख ले, बोले ये मेरे वास्ते रख ले। फिर जहरा को बुलाए, ऐ जहरा मेरे बाद अनकरीब तू मेरे पीछे, तुम्हें मेरे साथ आती जन्नत का, ये तुम्हारा लो। अब देखो कफन रखना, कफन बांटना, कफन की चीज़ें रेडी करना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या उन्होंने भी रेडी कर कुछ रखे थे यहाँ करके बोले तो डरले मरते, ये कुनू भी रखे, फातिमा जहरा को दे। बाद में क्या करे? उसके बाद इमाम अली मुर्तज़ा को दे, ऐ अली तुम ना एक बदबख्त शख्स कत्ल करता है, तुम्हारी दाढ़ी लाल हो जाती है, खून भरे खंजर से मारता है, उसके ऊपर बदवा है, लानत है, ज़ारो क़तार का लिए रोए, मौला अली की सर के ऊपर पिशानी को मोहब्बत से प्यार करे, करने के बाद गले लपट को बोले ऐ अली जब तक तुम्हें रहती, जब तक सुन लो और से
जब तक तुम्हें ये दुनिया में रहती तब तक मनहज नबूवत चलती है। कहते हैं क्या चलती है? ये 30 साल का वो बोलते नहीं, ये 30 साल रसूल के बराबर 30 साल तक मौला अली मुश्किल कुशा ध्यान रखते सो क्या आलम असबाब में 30 साल तक। ये 30 साल में कौन आए क्या है वो न को हम ना, 30 साल में अली थे वो मनहज नबूवत। अली जिस दिन शहीद हो जाती उसके बाद में कुछ अर्सा उसके अर्से क्या करती सब जने कहते हैं खुलफाए राशिदीन का तो 4 करते, एक अबू बकर, एक उमर, एक उस्मान, एक अली के हसन की अली में मिलाते। किसमें मिलाते? कुछ 4 महीने 10 दिन की कहते की है उसमें भी मिलाते बरकत। ये जब तक अली मुर्तजा दुनिया में थे तब तक ये मनहजे नबूवत, इसके अंदर क्या भी हुआ वो मानना हमारे पर लाजिम की गया। तो अली मान लिया तो नबी मान ले सकता, अली मान लिया तो नबी, चाहे वो तरावी हो आधा अली मान क्या तभी बंदे जो भी है मनहज नबूवत के अंदर जो भी आया मानना टोटल होगा। अब मनहज नबूवत होती है अली, उसके बाद काट खाने वाली मुल्कियत होती। इमाम हसन को बुलाते, इमाम हसन को देते, बोलते आए हसन कुछ जहर से शहीद करती, कई दफा जहर देती, ले बेटे गलबुओं पे। इमाम हसन ले लेती, जाको बैठ जाते, फिर दूसरी आखिरी थैली उठाती, एक नबी की हुई, एक फातिमा की हुई, एक अली की हुई, एक हसन की हुई। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हजरत ज़ैनब भैया तुम्हारी बारी का कोई नो बैठे रेस्ट हाथ से बच्चे ना इशारा करते। अब इमाम हसन क्या करती हैं, अपने आप को जाने के वास्ते उठने तैयार करती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थैली उठा को देखती, देख को फिर जरा खतर कर हिचका मार को रोती, फिर रोते रोते जब हसन हुसैन के पर नजर जाती है, हुसैन रेडी हो रही आने के टेम्पो पर, बोले तो मेरे हसन का क्या बोलती, रोते रोते पुकारती मेरे हसन का। ज़ैनब यहाँ से पुकारती, नाना हसन को दे डाले हुसैन को दियोगे, हसन को दे डाले हुसैन को दियोगे, फिर हसन का दे, फिर हसन का दे। फिर ज़ैनब पुकार को बोलती, नाना हसन नहीं होगा, हसन का हुसैन का देना था, हुसैन बोलो नाना का दे। तीसरी बार इमाम रसूलुल्लाह फिर मेरे हसन का दे। तब हुसैन क्या करती है, खुद उठा ले जाको इमाम हसन के पास जाको, भैया तुम्हें आओगे, भैया तुम्हें आओगे। इमाम हसन बोलती हैं, नहीं भैया मेरे पास है ना, मेरा हिस्सा है ना। फिर मुझे नहीं नाना बुला रही, चलो तुम्हें, मैं तो सुन रहे रोने के हिसाब से कहते भी मुझे छोड़, नहीं तुम्हें चलो तुम ना बुला रही, रुको। इमाम हसन ले जाको, इमाम हुसैन हसन को ले जाकर सामने खड़ा को, नाना गम न को करो, तुम्हें गम न को करो, मुझे मालूम क्या होने वाला है, मुझे मालूम क्या होने वाला है, तुम्हें जो है वो तुम्हारा काम पूरा करो। उठा को काफू की थैली उठा को और एक थैली उठा को इमाम हसन को दे दिया। ज़ैनब जोश, इमाम हसन का जोश, नाना ये क्या नाना, ये नाना तुम्हें क्या करें नाना, मेरे माँ जाए को बोलो तो मेरे भाई को, मेरे पीठ के पीछे का भाई, मैं उसकी पीठ के पीछे की। हसन हुसैन के बाद हजरत ज़ैनब, तुम्हें हसन को दो करती ना। वहां देखे तो एक बार शेर पुत्रिया हसन तुम्हारे साथ है कुश्ती के अंदर, इमाम हसन को सपोर्ट कर रही। एक बार देखे तो हिरन नहीं, इमाम हसन को दिए कुश्ती में, हसन करती। यहाँ देखे तो दो दे रही ना, तुम्हें क्या करने से है, मेरे हुसैन को क्यों नहीं याद करते सो, कि वो मेरे गरीब हुसैन को याद नहीं करते सो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा खताब का रोको, इमाम हसन को गले लपटते, हुसैन को गले लपट को बोलते हैं क्या करो, हुसैन को ये जरूरत ही नहीं पड़ती, इमाम हुसैन को ये तफसीम की चीज़ें पड़ती नहीं की बोले तो ये मेरा हुसैन जंगल में, करबला के जंगल में मारा जाता है, ना उसका गुस्ल होता है, ना उसे नहलाया जाता है, ना कुछ भी करा जाता है, उसकी लाश बेगौर और बेकफन रहती है। हजरत ज़ैनब को एकदम ये होता है, मेरे भैया हुसैन का ऐसा हाल होता क्या, नहलाने वाले भी नहीं, कफन देने वाले नहीं, गुस्ल करने वाले नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, मगर मेरे भैया हसन का क्यों ऐसा,
बोलते हैं ये और ऐसे है, हुसैन को ऐसा मारती कि वो चारों तरफ खुला रहता है, मगर याद रख लो जब मेरी मौत आती है 4 दीवारें में आती है। रसूलुल्लाह की जब शहादत हुई 4 दीवारी के अंदर हुई, अली की जब शहादत हुई 4 दीवारी में हुई, मैदान में नहीं हुई। जहरा की जब शहादत हुई 4 दीवारी में हुई। हसन की जब शहादत हुई 4 दीवारी में हुई। किसकी 4 दीवारी में? 4 दीवारी में हुई, बाहर काम ही नहीं। मगर मेरे हुसैन की जो शहादत होती है, हाँ दीवारा भी नहीं रहती, पूरे के पूरे जंगल में चारों तरफ कोई कुछ भी नहीं रहता, वैसी जगह गौर कफन मेरा हुसैन की शहादत होती है। ऐसा हुआ शहादत अभी ये 4 कमरे के बीच में, कमरे के अंदर हुए। बोलती इमाम हसन को की ना दो की। बोलती बेटी क्या बताऊं मैं मेरी बेटी क्या हालत होगी, कैसा होगा। इमाम हसन का ये कायनात में एक लाशा ऐसा है जो जाता कब्रिस्तान को जाको कभी लाशा किसी का भी घर को नहीं आता, मगर हसन का लाशा घर में आता, हसन का लाशा घर में आता। ये वाहिद लाशा कायनात का जो कब्रिस्तान को गया मगर वापस घर को आया। सालिमा के बच्चे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बड़ी दुश्मनी, तकरीबन 7 मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया जाता है। 7 मरतबा इमाम हसन मौसूल से बसरा, बसरा से मदीना, मदीना से फिर मौसूल बगदाद, फिर वहाँ से फिर मदीना, हर जगह अपने को बचाते हर जगह जाती, वहाँ जहर देती, खजूर में देती है, फिर अंगूर में देती है, फिर एक आखिरी दफा हर चीज में हर हम्मा ले को पूरी टोली इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन बोलते हैं भैया हमारा यहाँ गवार नहीं है। देखो जी नाना का मदीना, इसका मदीना क्या रहेगा, नानी की जायदाद, खतीजुल कुबरा की जायदाद, अबू तालिब मक्के के सरदार, अब्दुल्ला मक्के के सरदार, रसूलुल्लाह कायनात के मालिक, सिर्फ मदीने की नहीं, वैसे मालिक के बच्चों को 40 साल गुजरे नहीं। करबला तो 50 साल, 40 साल भी गुजरे नहीं, मदीने में जीने नहीं दिया इमाम हसन को। मदीने में थे, जहर डाले, मारने की कोशिश करें, वहां से निकले इमाम हसन, मौसूल गए, हाँ मारने की कोशिश करें, बसरा गए, हाँ मारने की कोशिश करें, बगदाद गए, हाँ मारने की कोशिश करें। फिरते पूरा काफिला, खाली इमाम हसन नहीं, इमाम हसन के साथ उनके बच्चे, उनकी बीवी, हुसैन के बच्चे, पूरे का पूरा जो टोला इमाम हसन के साथ फिरिया, वो टोला करबला को आया। करबला, खाली करबला में आको उस दिन से दो मुहर्रम से नहीं, करबला जिस दिन मौला अली मुश्किल कुशा को शहीद कर रहे, उस दिन के बाद करबला की शुरुआत माविया करता था। मेंबर रसूल के ऊपर नाज था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मेंबर को जब भी करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह की वहदानियत के बाद अगर बोलते तो बोलते इनकी शान बोलते, अहले बैत की शान बोलते। याद रख लो जब भी मेंबर के ऊपर खड़ो, दुआ करो, नमाज पढ़ो, तो पहला काम मुझ पर, मेरे अहले बैत पर दरूद पढ़ो। आज भी वो कायम, आज भी जब भी तुम्हें क्या भी अमल करो, नमाज में खड़ने पहले दरूद पढ़ो। पढ़ना किसके पर पढ़ रही सो? मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। तुम्हारी हर नमाज में मोहम्मद व आले मोहम्मद, हर जिक्र के बाद आले मोहम्मद, हर लम्हा मरिया तो आले मोहम्मद, तुझे अजान दिया स्टॉप को पैदा हुआ स्टॉप आले मोहम्मद, पूरी जिंदगी आले मोहम्मद, खान खाया में आले मोहम्मद, दरगाह में आले मोहम्मद, पूरी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करे सोच किसकी शान? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसी शख्सियतों को जो लोग थे अपनी जबान से मोहम्मद पर सलामती, दरूद का मतलब क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा पर सलामती, क्या बोलो जी? हो नहीं, और आले मोहम्मद पर सलामती हो। वो मुसलमान जो 24 घंटे सलामती हो करके बोलता जबान से, वो मुसलमान सलामती से इमाम हसन को मदीने में नहीं रहने दिया। देख लो, दरूद पढ़ने वाले वो जबान से आज भी दरूद पढ़ रही। खुदा की कसम आज इमाम हसन की शहादत है करके बोले तो जिस मस्जिद में दरूद पढ़ रही, इमाम हसन के ऊपर पढ़ रही, वो मस्जिद के अंदर तुम्हें वो उनका शहादत नहीं, उनका उर्स नहीं।
जिस मस्जिद में कोसे की पठान कहाँ से की आया, किससे की पैदा हुआ, उसके वास्ते देखो तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको वो शान दिख रही है। ये देखो जी कैसी लानत है, वो जमाने में भी ऐसा तंग करते थे। सलामती को बोल रही, मगर हसन को सलामती नहीं है मदीने के अंदर, हुसैन को सलामती नहीं है। मेंबर रसूल के ऊपर खड़को, मेंबर रसूल के ऊपर खड़को गालियां बकी जाती, मौला अली मुश्किल कुशा को गालियां बकी जाती, इमाम हसन को गालियां बोलते हैं, इमाम हुसैन को गालियां बोलते हैं, हजरत ज़ैनब को गालियां बोलते, ज़हरा को गालियां बोलते हैं। मेंबर रसूल के किसके मेंबर को, किसके रसूल के मेंबर को, जो रसूल शान बयान करता था वो मेंबर को गालियां बकी जाती। आज वो गाली नहीं, आज तब्दील हो को गाली नहीं दे रही, आज क्या कर रही, इनकी शान बयान कर रही। रसूल माविया गाली देता, शान कम करने के वास्ते गाली देता। आज माविया के पिल्ले क्या कर रही मालूम, टेक्निक बदलाए कि नहीं, क्या कर रही, अहले बैत की शान दिखा रही नहीं और इनकी शान बढ़ा रही, तो ये भी गाली दे रही, ये भी गाली की, गाली से बड़ी बराबरी, गाली से बड़ा काम कर रही, बड़ा काम। इमाम हसन बड़ा इधर से उधर, इमाम हुसैन बुला ले जाते, अब्बास बुला ले जाते, जाते ऐसा हुआ वापस एक बार बसरा कोई ऐसा शख्स 5 वक्त की नमाज पहली सफ में आको बैठता, इतना जिक्र, पूरा दिन जिक्र, इतना जबरदस्त दिखने में, ऐसा मौलवी ऐसा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देखो इंच पहले, अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम रिकवर हो लेके लोग आंखों मिल रही, बाता में उनकी खड़ता बोलता है, एक बड़े ज़ईफ शख्स, बुजुर्ग शख्स हैं, उनको इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिलाओ, उनको इमाम हसन को मिलाओ। उन्होंने बहुत तमन्ना करी, हर रोज आ रही, इमाम हसन कहीं करके बोल रहे। कल बोले इमाम हसन क्या करते हैं, बुला ले उसे, कहते अंख्या में सब्जियां दिमाग में क्या है, इमाम हसन बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा परहेजगार करो। अभी बुढ़े को बुला भेज, बुढ़ा ज़ईफ बुढ़ा असा ले रखा, आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखते, बुढ़े को ज़ईफ बुढ़े देखते, उठको खड़ते, बुढ़े को इज्जत करने, उठको खड़ते के साथ क्या करता है, पूरी पब्लिक खड़ा होती है, असा के अंदर चाकू पूरी क्या जहर सीधा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैर के अंदर छुपा को ऐसा हजम होता है, अल्लाह आलम कहाँ जाता कि नहीं जाता, पकड़े भी जाता है मगर मौरखा नहीं लिखता हमारे, मगर दूसरे मौरखा बोलते हैं, उसे पकड़ को पूछते तुझे कौन ने भेजा हसन को मारने का, तेरा तो माविया का था, बचाने के वास्ते कहते चाला चलती रहो। इमाम हसन का पूरा पैर जहर से आलूदा। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने जाते, रसूलुल्लाह की खबर मुबारक पर जाती, नाना देखो तुम्हारी उम्मत, फर्ज हमारे ऊपर दरूद पढ़ने हैं, हमारे ऊपर सलामती दिन रात बोलती, मगर हमारा सलामती से जीने नहीं दे रही, सलामती से रहने नहीं दे रही, सलामती से खाना नहीं दे रही, सलामती से पीना नहीं दे रही, ना जिक्र दे रही, ना नमाज पढ़ने दे रही, हम ना खाली इधर से उधर हम ना मारने की कोशिश करो, इधर से उधर भगा रहे। ये क्या मेरी उम्मत का, यहाँ से जैसा इमाम हसन अलैहिस्सलाम लपट ले को रसूलुल्लाह की मज़ार को बोल ले, कहीं अपनी इल्तिजा पेश कर रही, तो वहाँ से एक आवाज़ आती, अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम हसन रोते कहाँ से आ रही आवाज़ देखते हो, तो बकी की तरफ देखते, वहाँ से खबर में से आवाज़ आती है, अब्बा मैं चक्या पीस को पली सबा, चक्या पीस को पाली सबा, हसन को हुसैन को ये परेशानी में डाली ना बा, मैं पूरा मेरे शौहर को भी लुटा डाली, मैं मेरे बाप को लुटा डाली, मेरे बच्चा को भी लुटा ली दीन को, आज भी दीन के वास्ते इनको दिन हमने पूछने वाला है, प्रचारने वाला है कौन भी नहीं। अब्बा देखो तुम्हारी उम्मत क्या कर रही, देखो ये उम्मत, ऐसा मरहला रहता वो टाइम को रिवायत में नफ्से नफीस ज़हरा आ जाती है, आंखों इमाम हसन को अपने आगोश में लेती है, बेटा तू फिक्र मत कर, अनखरीब तू भी मेरे पास आता, ये जालिमा इसे दरूद भी हमारे ऊपर, सलाम भी हमारे ऊपर, फिर भी दुश्मनी भी हमारे ऊपर जुल्म भी, ये हमारी नसीब में लिखो है, सो बस तू नाना का याद रख, वादा याद रख, हम सभी शहीद होना हमारी सबसे बड़ी मेराज शहादत। इमाम हसन को समझाती बुझाती, बोलती अम्मा बड़ी प्यास लग रही है, आज मैं पानी पीना कभी 100 बार सूझ को पीना, उसमें जहर है कि क्या है कि किधर है कि, माँ 2 बूंद पानी। इमाम हसन पूछती, बोलती बेटे
तुझे मैं पानी दे डाली तो आज मैं तुझे पानी पेश कर डाली तो मैं हाथ बढ़ी तो जन्नत से आ जाता है, मगर जब हुसैन का 6 माह का अली असगर जो करबला में शहीद होता है, पानी के बाद से जब तरसता है, तब मेरी तरफ इमाम हुसैन पलट को बोलती, माँ देखो पानी, ये बोल सकते हो मैं हसन को भी नहीं दी, यहाँ भी तुझे नहीं देती, तेरा इम्तिहान है, मैं नहीं दे सकती। इमाम हुसैन लपट को बोलती, माँ अब नहीं पी पूछता। जब मेरे हुसैन का 6 माह का अली असगर बगैर पानी के शहीद होता, क्या भाई मैं प्यास से नहीं होता, मैं देख लो तू। इमाम हसन को दिलासा देती, दिलासा देखो। इमाम हसन जाती, जाने के बाद इमाम हुसैन को बोलती, देखो आज मेरी माँ की जियारत हुई, मुझे खबर मुबारक के पास, माँ की जियारत हुई खबर मुबारक के पास, ऐसा वाकया हुआ, ऐसी चीज़ें हुए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम पकड़ को बोलती, भैया पहले जो कुछ भी होना मुझे मांगो, पहले मैं चाक तू, मैं पी तू, बाद में थोड़ी देर के बाद अगर मैं चुस्त रहा, तंदुरुस्त रहा, तो जब तुम्हें ये पानी पीना। दुश्मनों चारों तरफ ही कि हुसैन को मरवान मक्के का, माविया मक्के का गवर्नर बना को मरवान को भेजता। अब ये पूरे के पूरे जहां भी जाती, मोसुल गए, बगदाद गए, बसरा गए, रह गए, कहाँ गए, हर जगह भी माविया बनी उमैया के पूरे गवर्नर को छोड़ रखा। उनका मकसद ही क्या, इनको सताओ, इनको मारो जान से, इनको सताओ, इनको मार। हर जगह, ये एक जगह नहीं, जहां जहां भी हसन गए वहां तक 7 से 2 बार हर शहर में उनको जहर दिया गया। 1-2 बार नहीं दिया, ऐसा जहर दिया था। माविया को जब खबर मिलती जहर दे डाले, इमाम हसन नहीं मर रहा, तो उन्हें बोलता आते सबसे खतरनाक जहर लो, लाते 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 आखिरी में वो जहर का इंतजाम करता है जो कोहिनूर हीरा पीस को बना कर दिया। वो नागसाम के अंदर अपना जहर बचा को साला जब बचाता है, तब हीरा वो पीस को बारीक ऐसा पीस को ले को क्या करती, कहते हैं जाओ ऐसी शख्सियत को देखो जो इमाम हसन के घर में हो। अब इमाम हसन के घर के अंदर जाना बड़ा मुश्किल, यहाँ से इमाम हुसैन है, यहाँ से अब्बास है, यहाँ का घराना बहुत चौकन्ना हो गया। 1 से 3 4 5 6 7 बार इनको अटैक होगा, हमें नहीं जा सकते, किसी से भी चुनो। क्या करें, जोधा बिन्त अशस एक लौंडी थी, उसे अशस की बेटी, अब रिश्तेदारी बताया तो बाद में तुम्हें बोलना, शिया कौन सुन्नी कौन करो, शिया कौन सुन्नी कौन तुम्हारा निकल जाती, उससे तुम्हें नहीं मनाते से सभी शहादत इमाम हसन नहीं मनाते सो, मरवान कौन बोला जाए तो तुम्हारा निकल जाती है, अशस कौन को बोला जाए तो फिर भी सुन लो एक बार, बोल नहीं है हमारे मुरीदा, दूसरे काना में रोया डालो। अशस जोधा बिन्त अशस भांजी खलीफे की है, मरवान जवी ये खलीफे का, पूरी जिंदगी इतने नजदीक थे सो, मगर आज खून के प्यासे। अशस को बुलाया जोधा, अशस बुलाता जोधा को, हाँ मीटिंग है, देख तुझे 1 लाख दिरहम सोने के सिक्के तुझे देती, तेरी शादी यजीद से करा तू मेरे बेटे से, तू कहाँ मारी मारी फिर ले खाती इनके पीछे, साला से मारी मारी 40 साल तक इमाम हसन फिरते सो। बोलती अमन सुकून था इमाम हसन को पैसे, इमाम हसन कभी भी उनके हाथ में ना बैयत लिए, ना कभी भी उन्हें सूचे भी, ये काट खाने वाली मुल्कियत लात मार को दिए थे, लात मार को दिए थे। ऐसा तंग, अगर सही में तुम्हारे हदीसा सही तो इमाम हसन दर बदर एक गांव से एक गांव, एक शहर से एक शहर फिरले को कई कुछ है। तुम्हें हम घर को मेंबर के ऊपर बोलते हैं माविया बड़ी तारीफ करता, बहुत इज्जत करता, बहुत एहतराम करता, बहुत ये करता, थू है तुम्हारे जनमा को, तुम्हारे झूठ है, नस्लों के ऊपर लानत। इमाम हसन को दर बदर फिराने वाले, हर जगह फिराने वाले, अगर उनको सेफ्टी मदीने में नहीं हुई तो तुम ना सेफ्टी कहां देती, तू बड़ा बनियाना बादशाह हरामखोर, कौन की हरामखोर बोलता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत के नाम माविया की सल्तनत, तेरी अम्मा की सल्तनत का नाम हरामखोरा, इनकी माँ उनको कौन सा खून पिला देगा हरामजादे, तुम्हें सभी खड़े स्टेपो। सही में ये इमाम का कौल देख लो, जो भी माविया ही रहता मालूम, अगर माँ या बाप 2 में से विलायत अली से छोड़ को गए तो, माँ अगर माविया ही रही तो नहीं, बाप आने से पहले माविया आको तुम ना दाल को जाकर तुम्हें ऐसे पैदा होते, हराम के नस्ल तुम पैदा, उसके वास्ते माविया को मर जा रही सो, और शान भी कर रही है अलग, हमें माविया ही करो। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। माविया का सही माना क्या मालूम,
भोंकने वाली कुत्ती, मुंह खुला कुत्ती का नाम माविया। मालूम, कोई शख्स माविया नहीं नाम रखता, आज भी नहीं नाम रखता। ऐसे हराम खोरा ही आज। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक बार अंदर ही, घर के अंदर ही ज्यादा बिनते अशस को ये सब हवस दे डाले। अब हवस में जल्दी भाई को हम पड़ जाते सोच आई। इमाम हसन बोले नहीं जाना, कोई नहीं जाना सिवाय मैं, मेरी ज़ैनब, कुलसूम, अब्बास, इतने जने इमाम हसन के कमरे में कोई नहीं जाना। इमाम हसन जो भी आता है इन्हों पहले चाटते, इमाम हसन को बाद में भेजते, खिदमत कर ले खड़ी। क्या करी, एक रात में इमाम हसन को मालूम था कि बड़ी प्यास वाले को, क्या करिए, छत के ऊपर चढ़ी। देखो छत के ऊपर चढ़ी, छत के जो पहले ज़माने में क्या भी मोल्डिंग नहीं थे, ऊपर क्या खपरेला भी नहीं थे, क्या खजूर के हटे, नीचे उतरी। नीचे उतर को जो मिश्कीज़ा था, वो मिश्कीज़े में पूरा वो हीरे के पूरी बुकरी डाली, दाल को फिर वापस गई, बंद डाली, चलेगी। इमाम हसन मुश्तबा उठे, तहज्जुद को उठे। अब उठाए मिश्कीज़ा, उठाने के बाद वज़ू करे, कुल्ली करे, कुल्ली करने के बाद सब जो था वो सभी कर ले। पानी कुछ 2-3 जरा खतरे बच गा। रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक इमाम हसन क्या करते हैं, उठा को मिश्कीज़ा उठा पलटा को पी लेते। पीनस ना, वज़ू का पानी शिफा ना, अब इनसे बड़ी सुन्नत क्या, पी लिए। पीते के साथ 2 कदम चलते के साथ तब इनको पूरे जिस्म के अंदर गर्मी, आग के सरकार ये कटना शुरू हो रहा। ये हिसाब में बोलते हुसैन मेरा हुसैन भाग को आते देखेंगे तो बोले पूरे के पूरे इमाम हसन मुश्तबा हरे। इंसान कभी हरा नहीं रहता, पूरे का पूरा हरा हसन हरा। शाह को देखते साथ परेशान हो जाते, इतने खूबसूरत इतने थे, इतने गोरे, बहुत जबरदस्त इमाम हसन की खूबसूरती। ये देखे तो पूरे के पूरे हरे हो गए इमाम हसन, पक्के हरे हो गए। देखे तो गले लपट को हुसैन पूछती है, भैया ये क्या होगा कभी? बोलती बेटे याद नहीं, बचपन में तुझे मुझे हरा मिला, तुझे लाल मिला। मेरा हरा होना तू देखता, मगर तेरा लाल होना नहीं देखता। पर खुदा की कसम, जब शहीद इमाम हुसैन में तब पूरे लाल हुए। जब मेरा हसन शहीद हुआ, पूरे का पूरा हरा हुआ, पूरे का पूरा हरा जिस्म हरा, पूरे जिस्म के अंदर जहर फैल रहा। इमाम हसन पकड़ ले जाको, इमाम हुसैन पकड़ ले जाको, इमाम हसन को बिस्तर पर डालती। बिस्तर पर डाले तो खांसना शुरू कर दी। बड़ी हिम्मत से उठती, बाहर वरांडे में जाती, खैर करती। इमाम हसन आने को तो बोलती भैया भैया नको, आओ नको। इमाम हसन फोर्स कर रही, क्या हुआ देखेंगे। बोलते हैं नहीं, तुम्हें नहीं देख सकते। क्या को तो नहीं, मैं देखना। हुसैन पूछती है हसन को, मैं देखना। बड़ी जिद करती इमाम हुसैन, लपट को बोलती मेरे हुसैन तू नहीं देख सकता, मेरे जो अंतड़ियों के टुकड़े पड़ेंगे। बोलती हुसैन भैया अच्छा तुम्हें बोलो को मैं देखता नहीं को, मेरे छोटे बच्चे के टुकड़े देखना पड़ता मुझे आदत डालो, पर देख तू। इमाम हुसैन देखे तो अंतड़े बोटे के टुकड़े पड़ी। इमाम हसन को लेने जाकर फिर बिस्तर को करती। अब उतने भी ताकत नहीं इमाम हसन के। बोलती तश्त लाओ। इमाम हुसैन गए, तश्त लाए, तश्त पे खै करते साथ जैसा आवाज बुलंद हो रही तो बोलती ज़ैनब पूजा बोले ज़ैनब आको। दरवाजे के सामने खड़ी, भैया क्या हुआ? जैसा ज़ैनब की आवाज सुने बोले हुसैन ये तश्त छपाओ। बोलती की वो खै आना। बोलती मेरी भान देखी तो बहुत तड़प जाती, टुकड़े मेरे कलीजे के टुकड़े पड़ गई बाहर। जैसा बात करती ज़ैनब सामने आ जाती, देख सुन लेती। बोलती भैया ये क्या हालत? बोलती दुनिया के अंदर ऐसी शहादत ये है कि जहर भी देखो, जहर से आदमी मर जाता है, मगर हुसैन को छलनी बाहर से करे, मगर हुसैन को छलनी बाहर से करे। हसन को जिस्म का आजा जो अंदर था छलनी होगा मेरे हुसैन। टुकड़े हुआ है कर रही, टुकड़े जिगर के
टुकड़े। हजरत ज़ैनब उठाती तश्त उठा के देखती जिगर के 72 टुकड़े, जिगर के 72 टुकड़े। हर टुकड़ा उठा को देख रही, हर टुकड़ा भी देखता है। इमाम हसन का जिगर का हर टुकड़ा भी उठा को देखो, ऐसा सेट कर रही, ऐसा बाजू रख रही। अब उनको भी क्या देवी, फिर क्या देवी, ये हो जाएगा पिलाएंगे, क्या किए उनकी मोहब्बत। तब जैसा जैसा लग रही तो वो टुकड़ा भी पुकारता, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। भैया को पूछती है, मामा हसन को पूछती है, भैया ये तुम्हारे जिगर के टुकड़े लब्बैक या हुसैन। बोलती ना क्या बताओ, बोलती बहन ये मेरे जिगर के टुकड़े जो 72 निकले नहीं, करबला में ऐसे 72 तक इमाम हुसैन के सामने निकले। 72 तन शहीद होना, 72 तन शहीद होना, ऐसे टुकड़े होकर गिरती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बोलती है, बड़ा दर्द हो रहा। मेरे बेटे को बुला। उनके बेटे के साथ उनकी बीवी तुम्हें रुबाब, छोटे बच्चा कासिम 4 साल का ले लगाते। उसे बच्चे को क्या भी मालूम नहीं, क्या मालूम आया कि बाप के सीने के ऊपर जाकर सो जा। खांस रही बाप, ज़ैनब उठाने जा रही, रुबाब उठाने जा रही। अब्बा को दर्द है सीने में, तो इशारे से बोलती है, हसन बोलती है नको, उठानो को। इन्हें जब मेरे सीने को आता बड़ा सुकून मिलता, मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा। मेरे सीने के ऊपर रहने दो। मेरे बेटे कासिम को अपने सीने के ऊपर रखती है, बोलती रुबाब कलम ला, दवात ला, कलम लिख, मैं जो बोल तो लिख। है मेरे बेटे कासिम, तुझे सबसे जब परेशानी सबसे ज्यादा आई तो ये ताबीज खोलना कर को। मरते मरते हजरत कासिम को वसीयत कर दी। हजरत रुबाब को बोलती बा कलम दवात। इमाम हुसैन वो हालत में लिखती हैं, क्या लिखती हैं अल्लाह आलम, वो करबला में पता चलता। लिखने के बाद रुबाब को बोलती, बीवी को बोलती ले ये ताबीज बनाकर कासिम की बंदा, हाथ को बंदा। जब मेरे कासिम को सबसे बड़ी परेशानी आए तो उस वक्त इसको खोल, इसके अंदर पूरी शफा रहती है, इसके अंदर इसका मसले का हल रहता है। जमाना गुजरिया, कासिम पूछ रही इमाम हुसैन को करबला में, चचा मुझे जाने की इजाजत दो, चचा मुझे इजाजत दो। इमाम हुसैन बोल रही मैं तेरा जिम्मा लेको हूँ कासिम, तू मेरे हुसैन का बच्चा, मेरा हसन का बच्चा, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। तू मेरे हसन की निशानी मैं नहीं जाने सकता, मैं नहीं जाने देता। तब आको बोलती रुबाब को, उनकी अम्मी को, अम्मी क्या बोले तो इमाम हुसैन सुन रही नहीं, क्या बोले तो भी सुन रही नहीं, भाई फुप्पू भी नहीं सुन रही। बोल रही तुम्हें हसन की निशानी। बच्चे को माँ याद दिलाती है, बेटे अब्बा बोले नहीं तुझे याद है क्या? हाँ याद है। क्या? सबसे बड़ी परेशानी हुसैन को नहीं कुर्बान होना, यानी होना सबसे नहीं बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी परेशानी हुसैन को नहीं मरना। आज तुझे नहीं मरने दे रही नहीं, वो सबसे बड़ी परेशानी। मरने देना तेरा पूरा ये खोल को ले जाकर सीधा हुसैन के हाथ में दे। क्या ये कर? हुसैन खोल को पड़े, खालिक को रहती खत, मेरे भाई हुसैन करबला में तू अकेला बता, तेरी करबला में मैं भी साथ देना था मगर नहीं दे सका, मेरी शहादत हो गई थी, अब मेरे बदली मैं नहीं आ सका। मेरे बेटे कासिम को तू इजाजत दे, ये मेरा हुक्म है आजिज़ाना, और ये मेरी तमन्ना भी है, मेरे वास्ते तुम्हारे वास्ते मेरे बच्चे को कुर्बान कर। जब हुसैन सुनती तो तकरीर उठा को लगा, बोलती हो मेरे हसन मेरे भाई, तुम्हें मरते मरते भी तुम्हारे दर्द की फिक्र नहीं थी, मेरी करबला की फिक्र, मेरी करबला की फिक्र। इमाम हजरत कासिम करे वो जमाना गए, इमाम कासिम गए करबला के मैदान में गए। जाने के बाद बहुत अच्छा लड़ती, बहुत बेहतरीन लड़ती। लड़ने के बाद गिरने के बाद ऐसा हो जाता है जैसा गिरती पुकारती, या अबा अब्दुल्लाह बिन हुसैन, मैंने मेरे बाप हसन का वादा पूरा हसन का वादा किया, और मेरा आखिरी वक्त है,
मैदान में देखो तुम्हारा भाई कैसा लड़ा, मैं हसन हूँ, आंखों देखो। लोग हम बोलती मैं सुलह कर लिया घर को, नहीं मैं सुलह नहीं करया, मेरा बाप सुलह नहीं करया, मेरा बाप सुलह नहीं करया। हम ना तंज करती, मेरा बाप लड़ो कर को बोल देते इमाम हसन को, लोग तंज करते। आज भी क़यामत तक भी वो बोलेंगे सुलह 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 कर को, मगर तंज करती। मैं कभी भी सुलह नहीं करया, मैं इतना छोटा हो मैं इतना लड़ सकूं तो मेरा बाप कैसा लड़ सकता। आओ मेरे हसन, मेरे चाचा, आओ तो पास आओ, देखो जैसा आवाज सुनती, हीरत सुनती, अब्बास चढ़े घोड़े को, हुसैन चढ़े घोड़े को, भागे। जैसा इन दो जने आ रही उसको देखे तो हजरत कासिम पड़े रहती, घोड़े इधर के उधर, उधर के उधर। हजरत कासिम की लाश टुकड़े 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 टुकड़े। इमाम हुसैन गए उस जगह को, पूछे कासिम, कासिम इब्न हसन, मेरे हसन, मेरे हसन, मेरे जी दिल चाहते हसन, तेरी सूरत देखता तो हसन दिखते, तेरी सीरत देखता तो हसन दिखते। मेरा हसन कहाँ गया, मेरा हसन कहाँ गया, मेरा हसन कहाँ गया। देखती हाँ से एक आवाज आती है, टुकड़े से लब्बैक क्या हुसैन, फिर यहाँ से एक लब्बैक क्या हुसैन, आवाज आते रहते। फिर वो टुकड़ा उठाती, वो चादर उठाती, चादर में वो टुकड़े को जमा कर, टुकड़े को जमा कर रही, परेशान हालत में, इधर से आवाज उधर से आवाज, टुकड़े टुकड़े जमा कर दी। जमा करते करते वो याद करती इमाम हसन की शहादत। हुसैन जैसा ज़ैनब तुम्हारे जिगर के टुकड़ों को, जैसा ज़ैनब तुम्हारे जिगर के अंतड़े के टुकड़ों को अलग अलग जगह पे क्या करे जमा करती थी। आज वो मंजर मुझे हुसैन को मिला, आज तुम्हारा बेटा टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर पड़ा है, तो इल्तिजा कर ले को टुकड़े जमा कर रही। एकदम अंखिया में से सामने अंधेरा, घोड़े भाग रही, घोड़े इधर से भाग रही। एकदम देखी एक नकाबपोश औरत घोड़ों के पीछे भाग रही है, घोड़ों के पीछे भाग रही है। हुसैन समझती शायद उनकी भावज रुबाब आके रहेगा, बोलती रुबाब रुबाब, नहीं जाना नहीं जाना, ये अशकिया, ये जालिमा के बच्चे, तुम्हें कहीं को निकल के तो बाहर, कहीं को निकल के भागती इमाम हुसैन जाती, भावज निकल बेटे की मोहब्बत में, कासिम की मोहब्बत में माँ आगे रिंगा को भागती। भागने के बाद सामने जाको देखे को बोलो तो एक औरत एक घोड़े के पांव को उठा को उसके टापों में से कुछ निकाल रही है, निकाल रही। बोलती ए तू औरत, तू रुबाब, तू तो कासिम की माँ नहीं, तुम्हें क्या कर रही है? बोलती बेटा जहरा फातिमा, फातिमा जहरा, तू टुकड़े जो जो बड़े हैं चुन लिया, मगर कासिम की ऐसी हालत हुई कि जब घोड़े भागे तो घोड़े के पांव के टापों में से उसका गोश्त इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम को जैसा उनका जिस्म के टुकड़े टुकड़े आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा हुआ, अंदर से खुदा की कसम वो हालत उनके बेटे कासिम को जिस्म का हर टुकड़ा टुकड़ा हुआ, जैसे छोटे छोटे टुकड़े जिगर के हुए, बोटी के हुए। और वो जो हीरा जो था ताज बारीकी में पीसा गया, तो छोटे 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 पूरे टुकड़े, वैसा हजरत कासिम के टुकड़े में करबला में। आज भी करबला के जो घोड़े थे उनके पाँव में कासिम की ये हाथ से इमाम हुसैन खड़े, बोले मेरे भाई हसन, तुम्हें करबला का जो हक देना था वो हक दे डाले, मेरे से ज्यादा दे दे, कासिम दे दिया तुम्हारा हक, तुझे मैं सलाम कर तो लब्बैक या हसन कहती। वो टुकड़े घोड़े के पाँव में से बोलती लब्बैक या हुसैन कहती। इमाम हसन सीने को सुला को ये पूरी तलखीन करे। बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जरा खुद के बाद उनकी रूह कब्ज हो जाते। कब्ज होने के बाद नहाने का तदफीन करने का सामान निकालती, सामान निकाले तो टेम्पो से ज़ैनब जाती, देखे तो दो रहती, ये उठा लगाती, नहलाती, खून पूरा जिस्म के ऊपर है, खै करे से पूरा पाक करती, जो काफूर आया वो सब
اسے پانی میں ڈالے، جو جنت سے آیا سب کچھ آیا، کفن جو آیا سب ہلائے دھلائے. امام حسن کا جنازہ اٹھا. مدینے میں مروان گورنر، معاویہ خلیفہ، مروان گورنر، معاویہ بادشاہ خلیفہ. جنازہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے مبارک کے بعد گڑھا بھی کھود ڈالے تھے لوگ، مدینے والے گڑھا بھی کھود ڈالے تھے. امام حسن کو خالی دفن کرنا. جیسا رسول کی مزار پاک کے پاس آتا ہے لوگ آنکھ کھڑ جاتی. مروان اور ان کی بنی امیہ کے لوگ کھڑ جاتی، نہیں کرنا، دفن نہیں کرنا. بہت التجا کرتی. رسول کو نہیں دیکھا. جب بھی رسول سجدے میں رہتے حسن حسین کو کھاندے کو بٹھا لیتے، ممبر پر رہتے حسن حسین کو بٹھا لیتے. حسن حسین سوری تو بیچ میں جا سو جاتے. ساری دنیا کو ہزاروں بار نشانی دے رہی کہ حسن حسین میرے جسم کا ٹکڑا مجھے سے جدا نہ کو کرو. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو، نماز میں، ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اپنے ہاتھوں میں ساتھ میں لے کو دکھائی کہ میں جدا نہیں حسین سے، نہ میں جدا حسن سے ہوں. میرا سکون حسن، میرا سکون حسین. پورے صحابہ دیکھے مباہلے میں گئے. حسین کو ہاتھ میں، حسین کو اپنے اس کے گود میں لے لے، حسن کو انگلی پکڑ لے، جدا نہیں کرے. علی پیچھے ہی، فاطمہ پیچھے ہی، فاطمہ پیچھے ہی، علی پیچھے ہی. ان کو ان کے بیٹے کے حوالے نہیں کرے. رسول کے ساتھ تھے، قرآن کے تحت ساتھ میں تھے. تم نے نہیں دکھا رسول کو کیا سکون. ان کے بازو کون گئے تو سکون. مگر کیا رہے امت ایسی. مدینے کے لوگ وہ امن والا شہر کو بولتی یہ امن تھا. سو حسن کا جنازہ جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. کون بھی جنازے کے ٹیپ کو تلواراں تیراں نہیں لے جاتے، مگر سامنے والے نہتے جنازہ گاڑی ٹیپ کو تلواراں تیراں لے جاتا ہے. امنیشن لے جاتا لڑنے کا نہیں لے جاتا. نہتے پورے حسین نہتے، عباس نہتے، جتنا بھی بنی ہاشم ہے پورا نہتا گیا. لاش لے کو تدفین کرنے گئی. سو مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیے. اب تدفین ہے، کڑا کھد گئے، تدفین کرنے جا رہی. مگر ظالمہ کے بچے وہاں سے تیر چلاؤ بتا، تیراں چلاتی. لوگاں کے اوپر بھی تیراں لگتی، لوگاں کے اوپر بھی تیراں لگتی. امام حسن کے جنازے کے اوپر ایسے تیراں لگتی کہ جنازہ اب اس کے اوپر تھا نہیں، پہلے جنازے کے اوپر لاش تھی. جیسا تیراں لگے جو پکڑے تھے پورے گرے، مارا پڑے، تیراں پڑے. کون بھی چھوڑ کو بھاگیا نہیں، مارا پڑے، تیراں پڑے. جیسا جنازہ الٹتا ہے تو امام حسین کی لاش زمین کو آتی ہے، مگر حسین کی لاش حسن کی لاش زمین کو نہیں پڑتی، تیراں کے اوپر کھڑے رہتے، تیراں کو کھڑے رکھے. یہ منظر دیکھے. ہاں غلاٹا زیادہ ہوا، پھر بھی حسین بولتی صبر، پہلے تدفین ہو جاتے. چلو اٹھاؤ جنازہ. پھر کیا کرنا؟ تدفین کرنا نہیں دیتے. تدفین خون رسول نہیں دیتے، نفس رسول نہیں دیتے. یہ ہڈیاں رسول کی، یہ خون رسول کا، یہ بچہ رسول کا جسم رسول کے ساتھ ہی چل دے نہیں دیتے. کسی حالت کو نہیں دیے. امام حسن حکم کرتی چلو جنازہ اٹھاؤ. پھر واپس گھر، پھر واپس دنیا کا پہلا جنازہ واپس گھر کو آیا. پورے پریشان، پورے بنی ہاشم کے عورتیں پریشان. رو کو ودا کری. سو پھر جنازہ آ رہی. کیا یہ جنازہ رکھتی. حضرت زینب بیٹھتی، بیٹھ کو یہ کہ تیر نکالتی رکھتی، تیر نکالتی رکھتی. روایت میں آتا ہے کہ 72 تیر امام حسن کے جسم کے اوپر لگے تھے. پھر امام حسن کا پورا جسم لہو لہات، اندر کے ٹکڑے ہو گیا، اوپر کے ٹکڑے. جیسا جیسا تیر نکالتی جسم کا ٹکڑا نکل کو آ رہا. امام حسن کا ٹکڑا نکل کو آ رہا. امام حسن کا موہا پڑ رہی، نکال رہی. واہ نانا تمہاری امت، یہ نمازی نماز پڑھنے دی ہے، یہ شریعت والے شریعت کرنے، یہ کیا میری ماں یہ دنہ دکھانے پڑھی. ایسا نوحہ پڑھ کے پورے کے پورے رونا. بعد پھر حسین آتی، بولتی میری بہن زینب تو لڑی تھی نہیں بچپن میں میرے واسطے، میرے نانا کو سب کچھ معلوم. آج پھر اس کا کفن بدلا، پھر نلا اس کے واسطے وہ استعمال کر اٹھائے گی. پھر امام حسن علیہ السلام کا پھر لاشا لے کو جاتی. پھر اس لاشا سے پورا خون بھرے کپڑے نکالتی، پھر نلایا جاتا ہے، پھر کفن دیا جاتا ہے، پھر لاشا اٹھایا جاتا ہے. پھر لا کو اٹھا کو نکل کو حضرت پاک بولتی
भैया वहां जाइए देखेंगे कौन क्या करता सो। फिर हुसैन बोलते नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ही बेहुरमती नहीं होना, हमारे हाथ से कोई जंग नहीं होना, जंग छिड़ जाती है, खून आंखों नहीं हो जाते, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होता, हमें सब बर्दाश्त करती, मगर रसूल की मज़ार के सामने हमें ये बेहुरमती मचा काम करेंगे। ताओ बकी में हमारी माँ फातिमा जहरा के बाजू इमाम हसन मुश्तबा को ले लेकर आए, हाँ दफन कर डाले। खाली ये वाक़या सुन लो, मुसलमाना का मदीना, मुसलमाना की हुकूमत, रसूल के नवासे को जब उन रसूल के बावजूद तदफीन नहीं करने दिए तो तुम ना आज हक बोलने देती, तुम ना पूरी दुनिया नाक के साथ खड़के है, फिर भी डरो नको, फिर भी डरने का नहीं। हुसैन के साथ 72 थे, हुसैन के साथ 72 थे सो, ज़ैनब अकेली थी सो, ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा दीन जीत लेगा, पूरा दीन जीत लेगा। पब्लिक हजारों की करोड़ों की पब्लिक उनके पास गई तो लान थी, ये कीचे हक की बात, खुदा की कसम हक अली, रसूल का फरमान, सारी आदम की औलाद एक तरफ, अली अकेले एक तरफ, पूरे को छोड़ो। आदम की औलाद में नबी भी हैं, सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, कलंदर भी हैं, अब्ताल भी हैं, पूरे आदम की औलाद एक तरफ जा रही है, मगर अकेले अली है। जब रसूल बोल रहे सबको ठोकर मारो, अली के पीछे जाओ, अली हक है करके बोले तो हमारा दोस्त क्या, हमारा माँ क्या, हमारे बाप क्या, हमारे रिश्तेदार क्या, ये सब तुम्हें सूचनो, ये कानून बनाना नहीं रसूलुल्लाह, ठोकर मारो, वाहिद अली के साथ रहो, अली हक पर, अली के साथ जाने वाले कभी नाहक नहीं होते। अगर सूच को रहते तो इमाम हुसैन करबला के अंदर कायनात से पूरे फरिश्ते जूते सीधा करना तो हुसैन के आंख को जिब्राइल मिकाइल सीधे करते, ऐसा आंख को छोड़ को जाते तो जूते घर के अंदर है, वो जूते की नोक को उसी तरफ रखती, घर की तरफ रखती। जब भी पूरी जिंदगी भी जब हुसैन बाहर निकलते तो जूते की नोक कहां तरफ कोसी तरफ रहती मालूम, ऑपोजिट तरफ रहती। कि नाना पूछते, नाना मैं ऐसा जूते छोड़िया, जूते ऐसा पलट गई ना, बोलती अल्लाह तुम्हारे वास्ते इतनी मोहब्बत रखता है कि तुम्हें फिर ऐसा पलट को पहनना, ऐसा अब आदमी में बाहर गया जूते ऐसा पलट को फिर ऐसा पहनना, यत्ता फिरना भी अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे से गवाह नहीं रखता, गवाह नहीं रखता। उसके वास्ते खादिमा बना को पूरे फरिश्ते को रखा है। इस जालिमा हुसैन को, हसन को अल्लाह उसका रसूल फिरना भी गवाह नहीं देता। तुम्हें इमाम हसन हुसैन को ऐसा शहीद करे कि पूरे पूरे आजे टुकड़े टुकड़े कर डाले, ना अंदर का छोड़े ना बाहरी जिस्म छोड़े, पूरे के पूरे टुकड़े कर डाले। और जो टुकड़े करती हरामजादे, वो टुकड़े करने वाले, वो मारने वाले, वो जहर देने वाले की आज तायीन कर ले को खड़ती ना, खुदा की कसम तुम्हारे माया, तुम्हारे भाना, तुम्हारे जोरुआ, तुम्हारे बेटियां कयामत के रोज हजरत फातिमा जहरा के सामने जा खड़ना ना, तुम्हारे औरत क्या करती, बोलती फातिमा जहरा मेरे बच्चा की खातिला की तायीद करे, तेरी माई जहन्नम, तेरी बेटी जहन्नम, ना तुम्हारे औरतां जहन्नम को जन्नत को जा सकती, ना तुम्हारी औलाद जन्नत को जा सकती है। क्या मुंह दिखाती, हसीमुन नार व जन्ना मौला अली, जन्नत और दोज़ख बांटने वाले, क्या मुंह ले जा खड़ती, क्या मुंह ले जा खड़ती। जिसे अली मुर्तजा अपनी नमाजों में कुनूत नाजिला पढ़को, माविया, अबू सुफियान नामा भोती, फिर भी याद रख लो माविया के शिया को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर, लानत कर दो। कुनूत नाजिला मौला अली पढ़ने वाले, मामूली हस्ती नहीं, कौन पढ़ने वाला, हसीम नार और जन्ना पढ़ने वाला, सर्टिफिकेट, जिसकी सर्टिफिकेट से तुम्हें जन्नत और दोज़ख जाना सो, वो सर्टिफाइड आदमी बोलता सो कि माविया की और माविया के चाहने वालों को जहन्नम कर को बोल डाले बात। तुम्हें बे सर्टिफिकेट जो दुनिया के अंदर 5-5 हजार घर का, तो तुमने कितने सर्टिफिकेट होना तुम्हारे आलिम के कोर्स, हाँ तुम्हें मदरसे के अंदर तुमने बिठा को सीधे सूर्य पूछे तो नहीं खड़गा, वैसा कि बिलाल खोला बताए, जामिया बिलाल चंदा लिया 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 लिया, आलिमा तैयार करा, तुम्हारी हैसियत को मेरी चप्पल, ये एक आलिम खड़ को बोलने वाला नहीं पड़ा, वहां से फिर यूपी बिहार से बुला, तुम्हारी औकात देखे तुम्हें पड़ा, तुम्हारे पैसे कहां गए घुसे। ये एक अच्छा आलिम नहीं तैयार कर सके जो माविया के बारे में बोल सके, समझा सके, और समझा को हम ना ये बना सके या तो वो बन सके, उसके वास्ते भी फसादे को ले लगा। ये हमारे आज
मदरसे हमारे ऐसे हैं, अल्लाह की कसम। आओ खान खाओं की तरफ आओ। हमारे खान खा के अंदर छोटा बच्चा भी, छोटा छोटा बच्चे को खड़ा को पूछे 12 इमाम कौन, हक कौन करो। हमारे जमाना से अगर कातिला का नाम आया तो लानती कर को आता है। हमारे जमाना से रहमत वाले का नाम आया तो अलैहिस्सलाम कर को आता है। ये जिंदगी, ये 600, ये पढ़ लिया तो नहीं। मोहब्बत, मोहम्मद वाले मोहम्मद की वफादारी सबसे बड़ा दीन। इनके गम में गम, इनके खुशी में खुशी हमारा ईमान। ये 600 हकीकत। रसूल अल्लाह जो शहादत से पहले खुद हसन की शहादत को रोए, रसूल अल्लाह हुसैन की शहादत से पहले हुसैन को रोए नहीं रोए। सुन्निया, सुन्नी का तो क्या, रसूल की सुन्नत तो तुम्हें सही में जो शहादत का डेट आया, शहादत के बाद रोना सबसे अफजल। शहादत के बाद पहले रोना रसूल सुन्नत बना रही। सुन तुम्हें सुन्निया अगर वो डिक्लेयर करे मगर शहादत याद रखो एक आंसू भी नहीं निकाल सके तो तुम्हें कह के रहे सुन्निया। क्या अहमद रजा का संदल करे थे रसूल ने? बोलो, क्या अबू तालिब को अपनी जबान से कभी जन्नत भी बोले थे रसूल ने? साबित करे थे। शैबा अबू तालिब में 3 साल थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा है, बीमार पड़ गए। हजरत अबू तालिब बुढ़े थे, बीमार पड़ गए। आता तो पानी जहर वालों का पानी आता। रात में प्यास आती, किसे अबू तालिब को प्यास लगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प जाती अबू तालिब को देखो, पूछते क्या अबू, चिचा को तो अरबी में अबू, क्या अबू, उन्हें हल्लक सूख रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब का हाथ पकड़े, ठोकर मारे, चश्मा निकला, बोले अबू तालिब पियो कर। अबू तालिब दी को क्या बोलती, मलम खुदा की कसम मैं मुतवल्ली काबा का, काबे में जमजम भी है मगर जमजम पी को वो सुकून नहीं मिला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी पाँव की ठोकर का पानी खुदा की कसम मुझे सैराब कर दिया। ये ईमान अबू तालिब। तुम्हें इस्माइल की ठोकर पी को ही सुधरे नहीं आज तक भी। 100 बार तुम्हें उम्रे कर लो, 100 बार हज कर लो, तुम्हें सुधरते नहीं, सुधरते भी नहीं। अबू तालिब वो हस्ती मोहम्मद की ठोकर से पानी निकला हुआ पिया तो वो अबू तालिब कौन थे? कायनात में कोई गौस, खुतब, कलंदर, अब्दाल, औताद ना कोई नबी वैसा है जैसा अबू तालिब। अफजल बादल अनबिया अफजलुल बशर, नहीं बादस अनबिया अफजलुल बशर। अगर कोई है अनबिया के बाद, अनबिया में रसूल आगे, अगर कोई है तो खुदा की कसम वो अबू तालिब। सब्बे बारे सब्बे गालिब, अबू तालिब, ये अबू तालिब याद रख लो। जो एजाज अबू तालिब को मिला, खुदा की कसम वो रसूल के पांवों की ठोकर का पानी पिए तो अबू तालिब वो हलाली मौला अली बना, जो हलाल और हलाल की पहचान करने वाले। वो हलाली, वो हुसैन पैदा हुए, वो हसन पैदा हुए, वो जहरा को वो ताकत है। ये पूरा कुंबा क़यामत तक भी इनके गुलामा के सिवा कोई इनके वास्ते खड़ा नहीं खड़ा, और उनका गुलाम कभी छपको नहीं खाता। मौला अली का कौल याद रख लो। 3 जने में से मोहब्बत नहीं करना। एक बुज़दिल गांडू, मोहब्बत छक्का, जो अलग नहीं बोल सके कि मैं अली वाला हूं। रूम में बोलना, बाहर नहीं, मेरा काम धंधा उन्हें नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये छोटे दिल वाला, क्या एक छोटे दिल वाला, एक कंजूस। कंजूस कभी भी याद रख लो, फिराक दिल रहना, कंजूस नहीं रहना। मरना ये सब चीज़ों के वास्ते, जान दौलत हर चीज कुर्बान करना। तुम्हारा 1 रुपया भी अगर इस महफिला मजलिसा में तुम्हें खर्चा कर रहे हैं तो याद रख लो तुम्हें वहां पूरी जायदाद जन्नत में खरीद लें, तुम्हारे बच्चा के वास्ते, तुम्हारे वालिदैन के वास्ते। ये मजलिसा के अंदर कंजूस, छोटे दिल वाला। छोटे दिल वाला क्या, हक के ऊपर हमें गालियां भी सुनती हैं, हम ना निचला भी दिखाया जाता है, हमारे ऊपर प्रेशर भी बढ़ता, हम ना बाइकआउट भी करते हैं, हमारा खानदान वाले सलाम भी नहीं करते, हम ना जमाते भी नहीं। छोटे दिल वाला रहता है, क्या क्यों लगा बा इनके पीछे रहा तो अली के मेरे भाइयां टूट रही, मेरा खानदान टूट रहा, मेरा बिजनेस टूट रहा। वैसे छोटे छोटे दिल वाले क्या करते हैं, वैसे नहीं। कभी भी याद रहो, मर्द रहना। क्या होना, मर्द।
की को तो ये सब मर्दा की निशानी, दाढ़ी मुझसे छोड़ लेता है, बच्चे पैदा करे तो मर्द नहीं, उसके यहाँ से खैबर किसमें बोले सो, खैबर में 30 पर 9 दिन मर्द बने जाक लड़े सो, कौन लड़े सो, दाढ़ी मुच्छी वाले बच्चे वाले शादियां वाले 1 से 4 शादियां करने को थे सब पूरे बच्चे पैदा करे थे, दाढ़ियां भी थे मुच्छा भी थे, तब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जो मर्द है, क्या नहीं थे। अल्लाह की रसूल की नजर में मर्द बना दाढ़ी मुच्छी बच्चे पैदा करने वाला नहीं, मर्द बना अली होता या अली वाला होता, बाकी के पूरे गांडू हिजड़े मेरे बड़े भाई, क्या पूरे गांडुआ हिजड़े हैं उन सभी, है सच हकीकत है। अगर ये हदीस को जरा खोले तो मैं पूछ लूं, मर्द बने स्टेस ना दाढ़ी मुच्छे वाले, फिर अल्लाह के रसूल कहीं को मर्द बोलेगा, ये तीन बात ही समझ लेना। मर्द बना कौन करो, मर्द बना जाको ये सब करया तो नहीं, मर्द बना मम्मा ते हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद करने वाला मर्द बना, अहले बैत को दिखाने वाला मर्द बना, पीर परस्ती दिखा लेता सो नहीं मर्द बना, क्या पीर परस्तियां ये सब दिखा ले, हमारा पीर हमारा मौलवी उसे बोलते नहीं मर्द बना, नस के मुताबिक मर्द बना, अहले बैत की मोहब्बत दिखाए। अल्लाह ताला कबूल करेंगे, अल्लाह ताला हमारी महफिल मजलिस को ये करेंगे। हैदर हो के हसनैन के सज्जादे वफा हो, बाखर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, जवादे तकी हो के नकी मस्त दुआ हो, सरकारे हसन अस्करी सैयदे बासफा हो, या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज इस पैकरे गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शिजरा अबू तालिब से मिलेगा, नारे हैदरी। और रही बात और एक चीज, हमारे आड़े हमारे सदमे आते याद रख लो, इस्लाम को दीन को कभी गैर हमारा कभी पहुंचाता भी नहीं, सोचो भी न, हमारा सदमे आड़े खड़ता, वो उसे भी केयर भी नहीं करना, जरूरत भी नहीं। बदर दिखा दली, बदर पहली बदर दिखा दली, बाप हाँ बेटा हाँ, बदर जंग नहीं देखना सो, बदर में रिश्तेदारी देखना सो, बदर में रिश्तेदारी देखना सो, जरूर पढ़ो बदर में रिश्तेदारी देखो, सामने रिश्तेदारी जरूर पढ़ो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हैदरी, रिश्तेदारी देखो। बदर का हीरो सामने कौन था, अबू जहल, कौन, रसूल का खून, चाचा भतीजा, देखे उड़ाई नहीं उड़ा, सुन्नत है। सगे दोस्तां, बचपन के दोस्तां इधर हजरत अबू बकर के सामने, बेटा उधर, इधर अबू बकर, जिनके बाद बोलता बेटा मुसलमान हो जाता कब की जमाने में, अबा तुम्हें मेरी तलवार के नीचे आगे बदर में मैं बाप कर को छोड़वा जाएगा था, मुसलमान हो जाता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं, अगर वो जगह तू आता तो मैं बेटा कर को तुझे नहीं दिखता था, तुझे मार को दिखाता मैं रसूल अल्लाह का कर को। ये ईमान था, सो जंगजू ईमान नहीं, ये ईमान का तकाजा बदर में था, दोस्ती रिश्तेदारी, मोहम्मद मुस्तफा को सब कुछ कुर्बान, पूरे का पूरा कुर्बान, उन्हें मोमिन। हार रख ले कोई खेल खेलेंगे करके बोले तो सिफीन में क्या करे मालूम, कुरान की आयत पढ़ती, अहले किताब हम सब एक हैं, तौरेत इंजील ज़बूर वाले हम सब एक हैं, कुरान वाले कैसे नहीं, अगर कोई बात उछालते, सिफीन में मौला अली ये तरफ, माविया ये तरफ, अब वहां से क्या करते थे, मौला अली मुश्किल शान मालिक अशतर को भेजते के साथ, तेरी टीम को भेजते के साथ, अब हार जाती को बोल को नेज़ांग के ऊपर कुराना उठाती, नेज़ांग के ऊपर कुरान। अब देखने वाले मुसलमान अभी क्या करते हैं, कुराना पढ़ को, कुरानों को मानने वाले ये अली माशाल्लाह, गलती कर डाल को हम ना कुरान वाले के साथ लड़ने भेजा लेना, हम कौम के साथ, हम किताब के साथ लड़ने भेजा लेना, हमें दुश्मन आकर को बोले तो अली इनको मारो को भेजा लेने को पलट को चल जाते। देखो हुक्म इमाम कैसा है, इमाम का हुक्म जाक मारो को, इन्हों कुरान दिखा डाल को, जो मारने हैं वो लोगों को चले गए, इनकी सोच डाला ले बीच में, गए मौला अली के पास, या अली क्या क्यों मारे नहीं, क्या नहीं मारे क्यों, उन्होंने अहले किताब, हमारी किताब उनकी किताब एक,
انہوں بھی قرآن والے انہوں مسلمان ہمیں مسلمان ہمیں سوچے انہوں غیرانگوں کو مارنے گئے تو تمہیں قرآن والے کچھ مارنے دے گی تمہیں کیسے الٹا بولتی مولا علی بولتی قرآن ماؤل علی علی ماؤل قرآن قرآن وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے میری آل کے ساتھ ہوتا ہے قرآن وہ نہیں ہوتا وہ ظالم پڑتا ہے مارو قرآن کے سمیت ان کو مارو یہ صفین دکھاتا سے آج بھی یہاں سے قرآن رہتی ہے وہاں سے بھی قرآن رہتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کیا پڑھ رہا ہے وہ یزید بھی کیا بہت بڑا حافظ تھا سو شمر بھی حافظ تھا انہیں قرآن پڑھ دیا تو ہوگا محبت علی ہے نا اس کے واسطے بزرگاں بولتے ہیں مولا علی خود بولتے ہیں قرآن صرف قیامت کے نزدیک حلق تک اترتا کرتا ہے کہاں تک سینے تک نہیں جاتا کرتا اب کہتا بھی چل رہا ہے معلوم حلق سے چل رہا سو فل اچھا سینے تک نہیں جاتا ہے پوچھے گا یا لکھی مولا علی فرماتے ہیں قرآن اترا تو سینے میں دیکھتا کرتے چیک کرتا کرتا علی کی ولایت ہے تو اترتا کرتا جب اترتا ہے غوث اعظم ہوتے سو خواجہ ہوتے سو صابر گلگری ہوتے سو جب ولی ہوتا سو یہاں تک اتریا تو انہیں مولوی ہوتا سو تم یہاں تک کے قرآن خالی لفظ کے قرآن کو ماننے سو سینے کے قرآن کو مانو سینے میں اترنا سینے میں اسی کے سینے میں اترتا جو علی سنے علی سوچے علی سمجھے علی دھڑکے بتا چھے سو اب انہوں بھی قرآن پڑھ رہی ہاں بھی قرآن پڑھ رہی ہاں دیکھ رہی مناظرہ یہ وہ بڑا انہوں بھی قرآن پڑھ رہی تمہیں بھی قرآن پڑھ رہی مگر خالی ڈائلاگا کا سب چیزیں کیا ہے خالی یہاں تک کا نہیں یہاں تک آیا سو یہاں اتر کو رہتا تو خالی صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر انعام کیا ہے محمد مصطفیٰ دکھا دے من کنت مولا فہذا علی مولا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو علی سے دشمنی کرے حسن سے دشمنی کرے حسین سے دشمنی کرے اس سے میں بھی غضبناک اللہ بھی غضبناک یہ ضالم کھلا دکھانے کے بعد بھی تمہیں لوگ نہیں مانتے تو اللہ بچاتا تو نہیں یاد رکھ لو کوئی تم نہ بچانے والا سے محمد مصطفیٰ اور آل محمد کی بیعت بھی کرنے والے کو ایک ڈکلیریشن فائنل بات اگر تمہیں اپنے نبی کے پاس جاؤ تو اپنے آوازوں کو کیا آوازوں کو اپنی آواز کو بلند نہ کرو کیوں اگر کرے گو تو تمہارے سارے اعمال نماز روزہ حج زکات ذکر سارے کیا کرتے حبد کیے گا کیا کرتے حبد کر کو بولے تو ضبط سیز کیا سننا واچ پیسہ آیتوں سے بولتے سو سیز وہ رکھتی کورٹ میں دکھاتی انہیں ایسا آیا سننا آیا یہ سبھی آیا وہ کیا کرتی گورنمنٹ یوز کر لیتے کیا کر لیتے اب یہاں سے ڈرگس آیا شراب آیا اسے کیا کرتے برابر نا اب اسے دکھاتے نہیں گانجا فیم سبھی آیت کیا کرتے ہیں اسے بولتے سو حبد ٹوٹل کچھ بھی نہیں رہتا دکھانے کے واسطے خالی فوٹو دکھاتے ہیں میں جلا دے پہلے جلا دو لو کتا یوز ہو جاتا ہے کو جلا ایسا محمد مصطفیٰ کے کو آواز سے بلند کرے تو تمہارے اعمال تمہیں سوچتے چلنا سو میں بہت بڑا نمازی میں بہت بڑا ہمائی دین میں بہت بڑا مولوی اللہ پورا جلا پر راکھ کر دیا تو بولیں گے یہ محمد مصطفیٰ کو نہ کرو یہ بھی حدیث سنو اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد یہ 12 کے 12 محمد پہلا بھی علی محمد دوسرا بھی محمد تیسرا بھی محمد چوتھا بھی محمد 12واں بھی محمد یہ فاطمہ کے ساتھ سارے کے سارے محمد ہیں تمہیں محمد کی بارگاہ کو بولے تو علی کی بارگاہ میں بھی تمہیں آواز نہیں کرنا فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں بھی آواز نہیں کرنا حسن و حسین و علی کوئی سی بھی بارگاہ میں حتیٰ کہ محمد مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہم نئے دوائیں گوہری گیلی سلسلہ انہوں کہاں آواز کر رہی معلوم سب مانتی آخری جو امام محمد مہدی آنے والے ہیں وہاں آواز کرواتے محمد مہدی کو بھی آواز کرنا خدا کی قسم محمد کو آواز کرنے کے برابر پورے کے پورے اعمال علم لیری کریں پورا حبد ہو جا رہا کیا ہو جا رہا جو بولے رسول بتے کچھ لینا اس سے زیادہ اس سے کم کرنے گئے خدا کی قسم تمہارے پیر کو مہندی منانے گئے حتیٰ کہ مہندی ہو جاتی تمہیں مہندی چلے السلام حسین 12 کے 12 یج 12 دوسرا 12 اس کے اندر نہیں آتا
पंजतन का तो ये पंजतन मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, इसमें घसोड़ना नहीं किसे भी। ये सैयदा सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अरब व अजम अली सैयदतुल निसा व फातिमा जहरा अल्लाह के बाता हसनो हुसैन अहले शबाब सैयदा अहले शबाब। 5 सैयदा को अल्लाह ताला खुद डायरेक्ट अल्लाह बोले। सैयदुल मुरसलीन सैयद नाम दिया, अली को सैयदुल आलम सैयदुल अरब व अजम, अजम के भी अरब के भी आलम के भी सैयद अली, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। सैयदा निसाउल आलमीन फातिमा जहरा, सैयदा इमाम अहले शबाबुल जन्नह, ये 5 सैयदा। ये सैयदा के बीच में तुम्हें सैयदा मुआविया अगर बता ले तो उसका बाप कौन मालूम? बोलो, नहीं है पता। 4 1 मदर 4 फादर, क्या 4, उसका बाप का पता नहीं। उमैया था, उमैया ये क्या बोलूं उसे, एक यहूदी को पालता है, हरब कर क्या करता है, हरब को पालता है। वो यहूदी को ले लेगा तो पाल लेता है, ऐसे बच्चे नहीं रहते ऐसे, यहूदी को पाल लेता है वो हरब। उसका बेटा अबू सुफियान का बेटा माविया का बेटा यजीद। तुम्हें ये स्टोरी बोलने समय कोसी बहुत चीज़ आई। हरब की औलाद जो है ये कमीनी औलाद है। अब क्या की बोलता है, कौन की बोला हो, एक छोरी हमारी वो कैसा बनी हजरत उस्मान गनी बेशक बनी उमैया, नो प्रॉब्लम। हाँ ऊपर जाकर देखे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उनकी नस्ल हाँ मिलती है ऊपर, बनी उमैया भी बनी हाशिम मिलती है, वो नस्ल से आए, नो प्रॉब्लम। वो बनी उमैया को हमें नहीं बोल रही, हमें बोल रही इसको से ये पालतू यहूदी की औलाद से निकले, हरब की औलाद से, ये हरब की औलाद के हराम आए सभी। तुम्हें मेरे बेटे ना मिक्सिंग कर को हाँ भी डालते सो हम इनको नहीं मानते, सबको मानती दादा, हमें सबको मानती, जो अली को माने उसे सबको मानती। हमें वलियां को भी छोड़ रहे, पीर साहब को नहीं छोड़ रही, अली को माने तो खत्म बोसी करी। अब सहाबी अली को माने तो क्या हमें नहीं करते? बेवकूफा, इतना याद रख लो, खाली अली करा रही पीर सभा वो भी नहीं करानी। कब तक उन्हें अली कब तक भी बोला था, उसे खत्म बोसी ये वो को निछावर करवा भी चांद। खुद अली को मानने वाला सहाबी को नहीं मानते हैं।